Hello class 10. So this is coordinate geometry chapter 7 and we are going to discuss some MCQs and objective questions based on this chapter, and the topic will be section formula from this chapter. Now it says coordinates of the point midpoint of the line joining this and this. अब यहाँ पे मेरे पास ये line segment हो गई A and B, इसके coordinate हमारे पास है 4, -7 and 2, 3. Now because this is one marker, we don't have time to write the formula. We can directly solve it. So x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. अब ये वाली जो चीजें हैं actually these help you to get the correct answer. Okay, so this is 6 by 2 3. देखो जल्दी से देखो, there are 2 A and D which are having 3. तो अभी मुझे further second coordinate y के लिए भी solve करना होगा. So -4 upon 2 तो -2. तो 3 minus 2 A is the answer. Okay, याद है ना आपको midpoint formula? Yes, it is the point which divides the line segment in ratio 1:1, and the formula is x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. Make sure you have to take reasonable time because this is MCQ and 1 mark is only for the answer, not for the presentation. The next question says the point which divides the line segment 7 -6. तो जनरली जब आप क्वेश्चन पेपर में से ये पढ़ेंगे बिकॉज यू हैव टू सॉल्व इन योर नोटबुक, तो ये वाली चीज आप वहां पे डायरेक्ट इस फॉर्मेट में उठा लाएंगे. अगर आप एक बार पेपर में पढ़ के जब उसको अपनी आंसर शीट पे लिखते हैं तो प्लीज मेक श्योर यू आर टेकिंग द करेक्ट वैल्यू. सो ए के कोऑर्डिनेट 7 -6, बी के कोऑर्डिनेट 3 4 एंड it says it divide it the point divided in ratio 1:1. Previous question और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है? No, there is no difference. So this is point C say and it divides it in ratio 1:1. हाँ, क्वेश्चन में इसने डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स पूछने के लिए क्या पूछ लिया? In which quadrant will this point lie? ओके, तो अब मुझे पहले पॉइंट फाइंड करना है और उसके बाद मुझे quadrant फाइंड करना है. सो 3 plus 7 upon 2 and -6 plus 4 upon 2. So these calculations are quite simpler. You can do it mentally as well. So 10 by 2 it is 5 and -2 by 2 it is -1. So 5 minus 1. So what is the quadrant? This is plus minus. अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला quadrant plus plus then plus minus plus then minus minus and then plus and minus. So x coordinate abscissa positive, y coordinate ordinate negative. This is fourth quadrant. So my answer will be fourth part. Now if you think you can do the question without my help, you can just pause the video and you can try it, and if it is correct then you can check with my answer. Clear? Then the next question says the point which lie on the perpendicular bisector. ध्यान दीजिए word perpendicular bisector on of the line segment joining A के coordinate -2 -5 and B के coordinate 2, 5 is. अब इसने बोला देखो मिड पॉइंट कहीं मुझे दिख नहीं रहा है, इसने बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. दो वर्ड यूज किए. बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वल रेशियो में जो चीज उसको डिवाइड करती है. तो लेट्स से दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. क्लियर? सो लेट दिस पॉइंट बी P which is the perpendicular bisector of AB. अब bisector है ना, तो it means it divides AB in ratio 1:1. So this point will lie at the midpoint of AB. तो midpoint formula x1 plus x2 upon 2. तो -2 plus 2 upon 2. तो 0/2 0 होता है. And similarly -5 plus 5 y1 plus y2. तो -5 plus 5 0, 0/2 0. So this is A origin. Clear? Next question, it says if A by 3 and 4 is the midpoint of the line segment joining -6 5 is for P and R के लिए मेरे को given है -2 and 3 और इसका जो midpoint है let's say this is Q, it is given as A by 3, 4. अब कभी कभी क्या करते हैं आप लोगों का एक टिपिकल मेथड होता है कि हम लोगों को पहले x के लिए सॉल्व करना है फिर y के लिए सॉल्व करना है, वहां से हम आंसर निकाल देंगे. लेकिन अगर आपको यहाँ पे सिर्फ e का वैल्यू पूछा गया है, वी विल नॉट सॉल्व इट फॉर y कोऑर्डिनेट. मतलब y1 plus y2 upon 2 हम यूज ही नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं है हमें. हम लोग डायरेक्ट सिर्फ फर्स्ट एब्सिसा के लिए x1 plus x2 upon 2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. तो -6 -2 दोनों का सम divided by 2 and its abscissa is compared with abscissa Q which is A by 3. ठीक है? So -2 -
6। इन दोनों का सम मेरा हो जाएगा -8/2 और ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा टू गेट वैल्यू ऑफ a। सो 2 4s are 8, तो -4 into 3 -12, a का वैल्यू मेरा आ रहा है -12। सो look for it, this is the option 3। so this is the short way in which we can solve MCQ। So in our next question, it says the fourth vertex of the parallelogram ABCD। तो मुझे यहाँ parallelogram दिया हुआ है, I can draw this parallelogram। Actually, it will help me to solve it easily। Okay, तो please don't hesitate to draw the diagram। This is vertices, all the three vertices I have written here and I have to find the vertex D। तो इसके coordinates को मैं x y मान लेती हूँ। So most of the time whenever this chapter finishes तो बच्चे ना ये वाला concept भूल ही जाते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है। वो लोग opposite sides को equal करने में लग जाते हैं, तो वो बहुत ही clumsy method है and that can't be used here। So in this question the single concept that we will use is the diagonals of a parallelogram bisect each other। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जो आपका मिड पॉइंट ऑफ AC है दिस इज सेम एज दैट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BT। ठीक है, तो मुझे सिंपली यही यूज करना है और मुझे कुछ यूज नहीं करना है। यहां से मैं फोर्थ वर्टेक्स निकाल पाऊंगी। तो यहाँ पे अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ, ये देखिए मिड पॉइंट ऑफ AC मेरा क्या हो जाएगा, इट इज 8 - 2/2। ठीक है ना, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट के लिए 3 + 3 डिवाइडेड बाय, क्लियर। एंड जब मैं BD का मिड पॉइंट फाइंड करूंगी तो इट विल बी x + 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड y + 7 डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट टू फाइंड द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क ही मुझे मिलने वाला है, मैं बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगी इन सॉल्विंग इट। तो जब मैं इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से कंपेयर करूंगी तो मेरा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है, देखो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ से मेरे पास बचा 6 और यहाँ से मेरे पास बचा 6 + x। सो 6 कैंसिल, x की वैल्यू 0। अब चेक कर लो x की वैल्यू 0, तो मेरे पास यहाँ पे एक सिंगल ऑप्शन B है जिसमें x की वैल्यू 0 आ रही है। तो जस्ट इन केस इफ यू हैव too short time to complete the paper you can go for this। ठीक, otherwise the best practice is just check for the y value as well। So this is again 2 से मैं 2 कैंसिल करूंगी, when I compare y coordinate then 3 + 3 6 is equal to y + 7। तो y की वैल्यू मेरी आ रही है -1। सो देखो ये कंफर्म हो रही है, बट अगर हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है देन वी कैन जस्ट हैव अ गुड वाइल्ड गेस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, if P, Q, R and S are the vertices of parallelogram। So this question is just similar to this question। So if you understood the concept then you can do this question by yourself। वो आपको ज्यादा अच्छा एक्सपोजर देगा। ठीक है ना, सो 1 2, मेरा वीडियो पॉज करना है यार, इसमें पूछना क्या है, वीडियो पॉज करो, अपना सॉल्व करो और फिर चेक कर लो आंसर ठीक है कि नहीं। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर अगर आपको समझ में आया तो आंसर गलत होने का कोई चांस ही नहीं है यार। सो अगेन आई एम जस्ट रिवाइजिंग द कंसेप्ट, मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इज सेम बिकॉज द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखो जब मैं इन दोनों को ले रही हूँ P Q R S, सो पी आर का मिड पॉइंट मेरा हो जाएगा 5 + 1, देखो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ से क्यू एस का मिड पॉइंट मेरा हो जाएगा 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2 6 + b डिवाइडेड बाई 2। एप्सिसा को एप्सिसा से कंपेयर करो, अगर मैं एप्सिसा को एप्सिसा से कंपेयर करूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 से 2 तो मेरा कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे मेरा 6 है, ये 4 यहाँ के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 6 - 4 a की वैल्यू आ गई 2। हरी अप, चेक चेक चेक। तो देखिए a की वैल्यू 2। तो अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन होता है वो वाला क्वेश्चन आपका बहुत इजी हो सकता है, जरूरी नहीं है आपको पूरा सॉल्व करना। सो 7 + 2 9 - 6 3, तो मेरा आंसर यही आ रहा है। Clear? So let's see what we have in our pitara on the next sheet। It says the length of median find करने को बोल रहे हैं। Oh my God! अभी हर क्वेश्चन में कुछ नया करते जा रहे हैं, लेकिन लेकिन ध्यान दो, हर क्वेश्चन में जो नया कर रहे हैं ना वो सब कुछ हमें आता है, हम लोगों को थोड़ा बस ध्यान देने की जरूरत है। अब अगर आपको मीडियन ही नहीं पता होगा या मीडियन की प्रॉपर्टी ही नहीं पता होगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, isn't it? बट मीडियन तो हमने 7th क्लास में भी किया था ना। सो ए बी सी एक मेरी ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस मुझे गिवन है 5, 1 1, 5 -3 -1 are the coordinates of ABC respectively। अब इसने बोला लेंथ ऑफ मीडियन AD, तो AD का लेंथ, अब ये जो D पॉइंट है दिस इज AD मीडियन है ना,
तो D is the midpoint of BC which means it divides BC in ratio 1:1. अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मिडपॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लूंगी, और अगर मैं D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर पाती हूँ तो फिर मैं अपना आंसर निकाल पाऊंगी डिस्टेंस फॉर्मूला से AD की लेंथ। तो देखिए इन दोनों का दिस प्लस दिस, तो -2/2 तो -1, 5 -1 तो दिस इज 4, 4/2 विल बी 2। सो डी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब आपको एडी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, तो बेसिकली आई एम यूजिंग बोथ, firstly midpoint formula and then distance formula to find the length of median AD. So this is under the root, this is 5 minus of -1. So betu 1 mark a question and I can't afford minus of minus, I'm writing it directly. So 1 minus 2 whole square. So 5 plus 1 6 होता है, 6 का square 36 होता है, that I will write directly. 1 minus 2 -1 होता है, -1 का square +1 हो जाता है, और इसको मुझे रखना है within the root. अब इसको यहाँ पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, we have already got the answer. Yes, this is in part root 37. Next question, next question, next question. It says a circle has its center at the origin. So I think it would be better अगर हम एक सुंदर सा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, अब इस सर्कल में इसने बोला है origin जो है, origin is this is the center. ओके, सो ओरिजिन O 0 0 सेंटर है, और उसके बाद इसने बोला P जो पॉइंट है दिस इज 5 4, तो यहाँ पे मैं एक P पॉइंट मान लेती हूँ, दिस इज हैविंग कोऑर्डिनेट 5,0, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट 5 0 थी इसलिए मैंने इसको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया, अदरवाइज यू कैन टेक एनी पॉइंट, इट्स कंप्लीटली फाइन। द थिंग इज इट सेज P lie on the circle, तो इसका मतलब OP जो है इट विल बी रेडियस, मुझे जो मतलब है वो OP रेडियस से है। ठीक, अब इसने पूछा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ Q एंड R if they lie inside the circle or they will lie outside the circle। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको डायग्राम बनाने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। ओके, नाउ 0 4, तो देखो यहाँ पे ये वाला क्योंकि रेडियस है ना, तो दिस पॉइंट विल आल्सो बी 0,5। ठीक, अब इसने बोला 0 4, तो फॉर श्योर 0 4 इधर लाई करेगा ना, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R 0 4। सो R पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? इनसाइड द सर्कल। अगर मैं यहाँ पे सारी ऑप्शंस ट्राई करूँ, Q आउटसाइड R इनसाइड, तो देखो R इनसाइड, तो ये वाली ऑप्शन मेरी ट्रू आ रही है ना, सी में R ऑन द सर्कल ये भी फॉल्स है, इनसाइड एंड आउटसाइड R तो आउटसाइड है ही नहीं, तो बोथ लाइक आउटसाइड ये भी गलत। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट सॉल्व करके मुझे अपना आंसर पता चल चुका है एमसीक्यू में, दिस इज सफिशिएंट। ठीक, अब R के लिए मैं आपको जस्टिफाई करवा, Q के लिए जस्टिफाई करवा देती हूँ 6 8, तो 6 8 जो पॉइंट है आपका 6 यहाँ 8 यहाँ, तो इट विल लाई समवेयर हियर, so this is outside the circle. So yes, our option A is true. Q lie outside the circle and R lie inside the circle. ठीक है ठीक है ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर रहे हैं इन अ लिमिटेड टाइम। सो द फिगर सेज P 5,3 -3, तो देखो हम लोग डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। ओके, A के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए 7 -2 एंड B के कोऑर्डिनेट दिए हुए 1 -5, एंड इट इज आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ Y एंड इट सेज P एंड Q आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है P और Q AB को 1:1:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। अब अगर आप ये क्वेश्चन ध्यान से समझ के नहीं करोगे तो यू विल जस्ट वेस्ट योर टाइम। दिस इज 1 मार्कर, सो 1 मार्क इज ओनली फॉर द आंसर। देखिए ये बोल रहा है Q जो पॉइंट है PB का मिड पॉइंट नहीं दिख रहा क्या? मुझे तो दिख रहा है यार, देखो 1:1:1, तो Q जो है इट इज मिड पॉइंट ऑफ PB। पहला मैंने ये शॉर्टकट ढूंढा। अब सेकंड में क्या हेल्प ले सकती हूँ, मुझे यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है उसको जरूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ y फाइंड करने को बोला गया, तो आई विल सॉल्व इट ओनली फॉर द ऑर्डिनेट व्हिच इज y1 plus y2 divided by 2। just use the value, so it is -3 -5 अपॉन 2, सो -8/2, तो इट इज -4। तो इसने पूछा था व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सो y की वैल्यू मेरी आ रही है -4। अब ये क्वेश्चन क्योंकि 1 मार्क का है, बट ये एमसीक्यू ना हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इट वुड बी बेटर इफ यू राइट द फॉर्मूला एज वेल व्हेन यू आर सॉल्विंग। देन a line intersects y axis and x-axis at point P and Q। तो देखो अगर ये वाले क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम मेंटली कर लेते हैं विदाउट डायग्राम, तो उससे ना काफी बार गलती होने के चांस हो जाते हैं। तो आई वुड रिकमेंड ऐसे वाले क्वेश्चन में प्लीज डायग्राम की हेल्प लीजिए, आपको सॉल्व करने में उतना ही टाइम बच जाएगा। तो P जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे है और Q जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे है, और 2 - 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो यहाँ पे ये मिड पॉइंट मैं ले लेती हूँ, लेट्स से इट इज A, it is 2 - 5, so because this is midpoint, so this is dividing PQ in ratio 1:1। अब ये बोल रहे find the coordinates of
P एंड Q रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब बाकी सारे क्वेश्चंस जो हम कर रहे थे उसमें मिड पॉइंट फाइंड कर रहे थे, है ना। और अब इस क्वेश्चन में मुझे मिड पॉइंट गिवन है और P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोला है, ठीक। अब मैं एक तो इसको सिंपल ऐसे लिख देती हूँ क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को एमसीक्यू की फॉर्म में सॉल्व करने का प्लान कर रही हूँ, तो मैं इसको ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं ले जाना चाहती, ध्यान रखिएगा। इसने बोला P जो पॉइंट है इट लाई ऑन वाई एक्सिस एंड इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस उसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, its coordinate are 0,5 if any point lie on y axis, clear। अब इसने बोला Q जो पॉइंट है it lie on x axis और अगर कोई भी पॉइंट x axis पे होता है तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं x, 0, ठीक। तो x1 y1 को मैंने 0 एंड y और x2 y2 को x, 0 में कन्वर्ट कर दिया। अब जस्ट अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला टू गेट द वैल्यू, so it will be x plus 0 divided by 2 is equal to 2। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई है 2 2 4 4, ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपका, तो x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 4। और सिमिलरली आप y कोऑर्डिनेट को जब कंपेयर करोगे तो y प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -5, तो y की वैल्यू आ रही है -10। बट x एंड y आर नॉट द आंसर, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p एंड q। तो देखो अब y की वैल्यू -10 है ना, तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे मेरे, p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 -10 और q के कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या हो जाएंगे x, 0 तो 4, 0। नाउ जस्ट चेक which is the correct answer, so D part is the correct answer, ठीक है। तो you just have to be present in the moment। अगर आप ध्यान से कंसंट्रेट करके काम करोगे क्वेश्चन ऐसे 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 सॉल्व होंगे। अब देखिए ये बोला पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ड्रॉ द डायग्राम, इट विल नॉट टेक मच टाइम, मेरे साथ चलोगे जल्दी जल्दी बनेगा। सो दिस इज 0 0 फर्स्ट वर्टेक्स, देन 0 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इसने बोला 3 0, तो यहाँ पे मेरा ये वाला जो पॉइंट आएगा दिस इज 3 0 और फिर इसने बोला 0 4, तो दिस पॉइंट इज 0 4, ठीक। तो ये देखो हमने 3 पॉइंट्स बना दिए, इनको ज्वाइन कर दो, मेरी ट्राइंगल के वर्टेक्स के ना ये वाले। तो यहाँ से अब मुझे पेरीमीटर निकालना है। देखिए यहाँ पे ये वाला जो साइड है ये 0,4 है, तो इस ट्राइंगल की साइड की जो लेंथ है दिस इज 4 यूनिट्स, ठीक। अब यहाँ से ये 3 0 है, तो इस वाले साइड की लेंथ हो जाएगी मेरी 3 यूनिट्स। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस ए बी, अगर मेरी ट्राइंगल का नाम ए ओ बी है तो ए बी की लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, दिस इज like 4 3 and ये origin है तो axis these are at 90 degree, so just apply Pythagoras। now you already know the Pythagorean triplet of 4 and 3, yeah this is 5। देखो ना तीनों साइड कैसे निकली हमारी चुटकी में। अब इन तीनों को ऐड कर दो, 9 + 3 12, so 12 units is the answer, ठीक है। 12 units is the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है this the area in square units of the triangle formed by this। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में ना बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, हमें वहां पे न्यूमेरिक्स दिया था, यहाँ भी हमें ए और बी की फॉर्म में दिया है। तो ए 0 का मतलब है द पॉइंट लाई ऑन द एक्सिस। अब यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं a, 0। सिमिलरली 0 b, इट मींस इट विल लाई ऑन द y एक्सिस, सो b जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट 0 b, ठीक। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो काम किया था बिल्कुल सेम वही चीज मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करूंगी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओ ए के कोऑर्डिनेट a 0 है ना, तो लेंथ ऑफ ओ ए दिस इज a यूनिट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओ बी, दिस इज b यूनिट, क्योंकि 0 b है ना, तो ये जो मेरी लेंथ बन रही है दिस इज b। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, सो हाइट है मेरी b, बेस है मेरा a, तो हाफ ए बी, या द आंसर इज हाफ ए बी, डी पार्ट इज द आंसर, ठीक। सो एमसीक्यू है, एमसीक्यू की तरह सॉल्व करो मेरे यार। अब ये बोल रहा है द पॉइंट दिस आर vertices of equilateral triangle, isosceles triangle, collinear, none of these, ठीक। तो अब मुझे ये चेक करना है। इसके लिए हम इन 3 पॉइंट्स के नाम जो है फिर से लिख लेते हैं। a की वैल्यू 1 1, b के कोऑर्डिनेट -2 एंड 7 एंड c के कोऑर्डिनेट 3, -3। अब हमें क्या करना है, तीनों डिस्टेंसेस निकालने हैं 1 by 1। तो दिस इज this can be one marker and this can come in higher weightage as well, so please be attentive। If it is in higher weightage then we will write the formula and do the proper presentation, and if it is one marker then do as short as you can, okay। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, -2 -1, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। टाइम नहीं है, टेम टेम टेम, सो -2 - 1 -3 का स्क्वायर हमारा क्या होता है भैया 9। अब देखो ना यार यहाँ 9 भी तो लिख सकती थी, इतना टाइम मैं क्यों वेस्ट कर रही हूँ मुझे नहीं पता। 6 का स्क्वायर ये, और अगर पेपर छूट गया और फिर तुमने मुझे बोला ना पेपर ना टाइम कम था,
बहुत पिटना है यार, बहुत पिटना है। ठीक है, 45 का मतलब होता है 9 5, सो दिस इज 3√5। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं क्या 3√5 लिखना जरूरी है? यस, अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो तो दैट विल बी एक्चुअली हेल्पफुल। BC under the root. This is 3 minus of minus 2, so 3 plus 2 का whole square and minus 3 minus 7 whole square. So कुछ बच्चे बोल रहे हैं इतनी गंदी हैंडराइटिंग। बेटू 1 मार्कर है, आई कांट अफोर्ड मच टाइम फॉर दिस क्वेश्चन ना, बट जो टीचर को दिखना है वो मैं बहुत नीट लिखने वाली हूँ। ठीक, तो -3 -7 -10 का स्क्वायर इज 100, 100 प्लस 25 125, 125 होता है 25 5 25 होता है 5 का स्क्वायर, सो 5√5। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी बोले जा रही हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें सब समझ में आ रहा है, तुम मेरी मस्ती ले रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। AC 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 आ जाओ मैदान में। AC जी, तो दिस इज 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 होल स्क्वायर। यार डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ यार, कितनी बार बताऊंगी ना। -4 का स्क्वायर, दिस इज 2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, 16 प्लस 4 होता है 20, 20 होता है हमारा 4 5 सा 20, तो दिस इज 2√5। ठीक, अब देखो मेरे पास 3 डिस्टेंसेस आ रहे हैं और वो जो 3 डिस्टेंसेस हमारे पास आए हैं, एक आ रहा है मेरा 5√5, एक आ रहा है 3√5 और एक आ रहा है 2√5। अगर मैं AC और AB को ऐड करती हूँ तो मेरा BC आ रहा है। सो दिस इज सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड वन, सो दिस इट मींस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो मेरा आंसर हो जाएगा कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है the point which divides the line segment this and this in ratio 1:2 internally, then in which quadrant will it lie? So this is a section formula question। वैसे तो हम लोगों को कोऑर्डिनेट पूछा जाता था, बट यहाँ पे इन्होंने कोऑर्डिनेट ना पूछ के हमसे पूछ लिया in which quadrant will this point lie. So let's say this is A, this is B and this is C which is dividing AB in ratio 1:2। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने देखो C को बीच में नहीं बनाया, मैंने बेसिकली AB के 3 पार्ट्स बनाए, जिनमें से फर्स्ट पार्ट AC इसको 1 और फिर BC को मैंने 2 यूनिट्स लिखा बिकॉज द रेशियो वाज 1:2। ओके, नाउ लेट्स से दिस पॉइंट इज XY। ओके, अब मुझे सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ C निकालना है, उसके बाद ही तो मुझे कोऑर्डिनेट पता चलेगा ना। तो आई एम जस्ट यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला mx2, this is mx2, तो 1 into 3 plus nx1, 2 into 7 divided by sum of ratio, this is 3. So 3 plus 7 to the 14, 14 plus 3, 17 by 3। तो मेरे को इस न्यूमेरिक से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, मुझे जो मेन कंसर्न है मेरा साइन दैट इज पॉजिटिव। उसके बाद सेकंड के लिए आप चेक करेंगे 1 into 4 plus 2 into -6 divided by 3. So this is 6 2s are 12, 12 minus 12 plus 4, तो -8 by 3। अब देखो मेरा जो एब्सिसा आ रहा है इट इज पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। ओके, एब्सिसा पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट नेगेटिव, सो दिस इज आवर फोर्थ quadrant। Okay, so this is the way how we carry MCQs or the objective questions। ठीक है, so see you with some more interesting question soon। Thank you, Bacha. Thank you so much.